we are going to study past tense because so far we have studied present tense. In present tense, I have taught you simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So let's study past tense. Let me write here what's the definition of past tense. First of all, this is a word. What is past tense? What is past tense? It shows those actions. It shows those actions which are related to past time. It shows those actions which are related to past time. Note it down. Next question, how many kinds are there of past tense? How many kinds are there of past tense? How many kinds are there of past tense? Now the answer is there are four kinds of past tense. There are four kinds of past tense. Let me write all the name of the kinds. Number one, simple past tense. Number two, past continuous tense. Number three, past perfect tense, and number four, past perfect continuous tense. These are the four kinds of past tense: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So students, let me tell you about past tense. First of all, what is past tense? It shows those actions which are related to past time. It means what? कोई भी काम जिसका रिलेशन पास्ट टाइम से, अभी से नहीं, पास्ट टाइम से. हम लोग प्रेजेंट टेंस में क्या सीखे थे कि कोई भी काम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट टाइम से रिलेट करता हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. सेम उसी प्रकार अगर कोई काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पास्ट टाइम से रिलेट करता हो, उसका अभी से कोई मतलब नहीं है, तो वो होता है पास्ट टेंस. जैसे मैं सुबह देर से उठता था, अब मेरी आदत बदल गई है, अब मेरे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो अब मैं जल्दी उठ रहा हूँ. तो जो आदत मेरा था पहले का, अब नहीं, यानी कि प्रेजेंट टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है. जो पास्ट टाइम से रिलेटेड एक्शन था वो होता है पास्ट टेंस. ठीक है. पास्ट टेंस के फोर काइंड्स होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सभी टेंसेस को पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस वन बाय वन. So first of all, we are going to study simple past tense. Note it down fast. All of you have written? So now the next question, what I am going to write on the board, that is what? Simple past tense. Simple past tense. What is simple past tense? What is simple past tense? It shows our past habits. It shows our past habits. If you talk about the structure of simple past tense, positive sentence, subject plus V2 plus
object. If you want to change the structure in negative, you have to write down subject plus deed plus not plus v1 plus object. And if you talk about interrogative sentence, first of all write down deed plus subject plus v1 plus object. That last question mark should be mentioned here. And now the next question, next structure, interrogative negative sentence, right? So write down here deed plus subject plus not plus v1 plus object and question marks. Students, now you can see I have written here what is simple past tense, right? हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था कि वो हमारे प्रेजेंट हैबिट को शो करता है, यानी कि वैसे काम जो हमारा नेचर हो, जो हमारा हैबिट हो, जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन वही सेम अगर पास्ट की कोई हमारी आदत थी जो अब आदत नहीं रही, अब वो आदत छूट चुकी है, जो हमारा हैबिट था, नेचर था, जो काम करने का स्टाइल था पहले का, है ना, अब वैसा स्टाइल नहीं रहा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इट शोज आवर पास्ट हैबिट, ये हमारे पहले के लक्षण, हमारे पहले के स्वभाव, हमारे पहले के आदत को शो करता है क्या, सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम नोट करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लोग V2 यूज करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना होगा। फिर हम लोग V1 यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जब भी हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डीड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करें तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो V2 है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो हर जगह हमारा V1 यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे थे उस समय कि अगर कोई सेंटेंस में डू, डज, डीड, शैल, विल अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो तो हमेशा V1 फॉलो करता है। तो यहाँ पे डीड क्या हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे V1 यूज कर रहे हैं, ना कि V2 यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास्ट हैबिट को शो करने वाला जो होता है सेंटेंसेस, एक्शन जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। तो हम लोग कोई एक ऐसा अपना आदत को याद करेंगे जो पहले करते थे लेकिन वो आदत अब नहीं है हमारी। जैसे मैं सुबह देर से उठता था, मैं सुबह देर से उठता था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। आप लोग लिखते रहेंगे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह देर से उठता था। अब मैं कैसे समझ गया कि हमारा पास्ट हैबिट है? यहाँ पे V2 लग गया, गेट का V2 गॉट, तो ये पहले की आदत को शो कर रहा है, ये पहले के हैबिट को शो कर रहा है, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। अगर सेम सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, फिर यहाँ पे डीड यूज करेंगे, सिंपल पास्ट है तो, नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, आई डिड नॉट, और फिर यहाँ पे V1, ये पॉजिटिव था इसलिए V2 लगा, नेगेटिव लगा रहे हैं तो V1 लगेगा, तो गॉट का V1 क्या हो जाएगा? गेट, आई डिड नॉट गेट अप लेट, I did not get up late in the morning, in the morning, मैं सुबह देर से नहीं उठता था, I did not get up late in the morning। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, if you want to change an interrogative sentence, helping verb will be used first। So here is a word did, did I get up late in the morning, late in the morning, did I get up late in the morning? And at last you have to write down what? Question mark, because it is a question. And when we talk about the interrogative negative sentence, write down first of all helping verb, did will be written here first, then subject, did I, then not, did I not get up late in the morning, in the morning, did I not get up late in the morning,
Now you can see I have written one example of simple past tense using the above structure. If you understand simple past tense, it will be very easy to you all. So what is a simple past tense? It shows our past habit. It shows our past habit. And to talk about the structure, I have written here an example here, right? So you must know it that simple past tense take what? The second form of verb, but you have to change into negative or interrogative. You have to write down only one form of verb, because we have used here what? Did as a helping verb. And whenever you come to know the helping verb, do, does, did, shall, will, these are used, you have to use first form of verb, no other form of verb, only first form of verb will be used here. Now we are going to study the uses of simple past tense. The uses of simple past tense. Okay. We are going to learn uses of simple past tense. Uses of simple past tense. Students, as we have learned so many uses in simple present tense, in the same way we have to know many uses of simple past tense also. So one by one we are going to study the different uses of simple past tense. The first rule of simple past tense is a what? The first rule of simple past tense is a what? If two actions happen, if two actions happen one after another, we use simple past tense for the later action. If you want to write the structure of this rule, subject plus had plus V3 plus object plus, then again you have to write down here. If you don't write a plus, you can use here subject plus had plus V3 plus object plus before plus subject plus V2 plus object. This is the structure of simple past tense. देखो बच्चों, क्या कहता है कि अगर एक साथ दो काम हुआ, एक काम पहले और दूसरा काम बाद में, तो अब कौन से टेंस के लिए, कौन से एक्शन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, तो इसमें दो एक्शन है, एक मेरा बोलना और एक उसका बोलना। तो ये दोनों काम में पहले काम कौन सा हुआ? अगर हम हिंदी में लिखेंगे, मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया। अब यहाँ पे दो एक्शन है, एक मेरा बोलना और दूसरा उसका बोलना। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो टेंस है, एक टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है, दूसरा टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका शो कर रहा है। ये बीच में ये कनेक्टिंग वर्ड के रूप में काम कर रहा है। तो मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, तो इसमें एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ है। तो मेरा बोलना ये क्या है, ये पहले हुआ कि बाद में हुआ? मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, तो मेरा बोलना पहले हुआ कि बाद में हुआ? बाद में हुआ। पहले कौन बोला? वह बोला। तो जो काम पहले हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जो काम पहले हुआ यानी कि उसका बोलना, ये एक्शन पहले हुआ तो वो बनेगा इस स्ट्रक्चर से, और जो काम बाद में हुआ वो बनेगा इस स्ट्रक्चर से। हिंदी में लिखा हुआ है मेरा बोलना पहले, लेकिन इंग्लिश में उल्टा हो जाएगा। जो एक्शन पहले हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ वो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो मेरे बोलने से पहले वह बोल दिया, तो पहले हो क्या? वह, उसका बोलना हो गया पहले एक्शन, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या है? ये हैड, ही हैड। उसके बाद V3, बोलना का क्या होता है इंग्लिश? स्पीक। इसका V3 क्या हो जाएगा? स्पोकन। ही हैड स्पोकन,
he had spoken, तो वह बोल दिया, इसका बन गया। अब मेरे बोलने से पहले, यानी कि मेरे बोलने से पहले, तो यहाँ पे पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। he had spoken before। अब देखो क्या है कि मेरा बोलना, तो I spoke, मैं बोला I spoke, he had spoken before I spoke। तो अब हम क्या देख रहे हैं? Before I spoke। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो काम है, एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ। तो अगर दो एक्शन एक साथ में हुआ हो, एक के बाद दूसरा, तो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, वहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, हम एक एक करके सब सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का फर्स्ट रूल। हालांकि एक रूल देखा जाए तो हम लोग डेफिनेशन में ही सीख लेते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड रूल है, लेकिन अगर रूल्स की हम बात करें तो ये फर्स्ट रूल हो गया। अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का सेकेंड रूल। क्या सीखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का सेकेंड रूल। लेकिन कुछ अगर और एग्जांपल्स आप लोग को, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो पहले क्या हुआ? पुलिस का आना कि चोर का भागना? पहले चोर का भागना। तो द thief had run away before the police came। Before the police came। तो भाई इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एक्शन एक के बाद दूसरा हो, तो जो पहले एक्शन होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है वो बनता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब हम लोग रूल 2 सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, ओके। इसे आप पहले नोट करेंगे।